Recording in progress. Namaste, Didi. Hello, Dr. Neelam. Welcome. Good afternoon, all of you. मेरे सारे कनिष्ठ, अग्रज और कनिष्ठों को नमस्कार. नमस्कार. अभी मैं सबको एडमिशन का प्रोसेस कर रही हूँ. एडमिट करने का. So this recording has been started. Okay. So we have our chairperson for today's session. Sorry. ये कितना होगा 8,000 और Am I audible? Yes, the loud and crisp. So, can we start? May we have the request the chairperson to provide us the permission to start the session so that I will start with the formal proceedings of the meeting. Dr. Vivek Agarwal, sir. Okay, sir. Respected the senior faculty members of Rog Nidan Academy, I can see Professor A.C. Kar sir has joined. Sir, we welcome you here. Professor Sandeep Dalekar sir, Atul Vashni sir, and all the senior faculty members. Our chairperson for today, Dr. Vivek Agarwal sir. Our resource for today, Dr. Neelam Gupta. We all welcome on behalf of Academy of Rog Nidan, you all in this lecture series, which is on a very important topic. And we also have Professor Pawan Godatwar sir, Dr. Prashant Deshmukh, and other members joining us in this lecture. We welcome you all, Professor Pawan sir and other members who have joined now. We welcome you all. Ji sir. And to commence with the lecture on time, I would request for the permission of chair to start the session. Dr. Vivek Agarwal, sir. Who is the chairperson of today? आवाज क्लियर नहीं है. Sir, my voice is not clear. Is my voice clear? Yes, ma'am. Okay. Your voice is clear, no problem. So Okay. clear. So now we will commence the session formally with Dhanvantri Stavan. So in absence of Dr. Ganesh Kole sir, I have been entrusted with the responsibility. So I will commence the Dhanvantri Stavan. Namami Dhanvantarim Adidevam Sura Sure Vandit Pad Padmam Loki Jararu Mrityunasham Dataramishan Vividaushadinam Dhanvantarim Ramanatham Sarvarognivarakam Ayurvedo Pravaktaram Vande Piyushadayakam. Om Shanti. After the prayers, we request
our resource for today, Dr. Neelam Gupta ma'am. She is an assistant professor in Ayurveda and Unani Tibia College and has a teaching and a research as well as clinical experience, which is very enriched. So we have our chair. Sir, we welcome you, sir. Dr. Vivek Agarwal, sir, are we audible to us? Audible. Thank you, Okay. Shalini. Okay, sir. So may we request, sir, your permission to start the lecture? You may start. Okay, thank you, sir. So now to commence the lecture, so that we have more time to hear our resource, I would like to hand over the session to Dr. Neelam. Dr. Neelam, will you share the screen, please? Yes, yes. I'm audible, ma'am. Yeah, you are audible. Yes, audible. Screen is visible. Yeah, it's visible. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकारेषु सर्वदा। ये ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि इंटरनेट बाबा कभी भी धोखा दे जाते हैं। प्रणम्य जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कारणं स्वर्गपवर्ग योद्वारं शरैलेत्व शरणं शिवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। रागादिरोगान् सततानुशतान् अशेष कायान् प्रसितान् शेषान् औत्सुक्य मोहरतीदा जघा यो अपूर्व वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी को अपना उचित आदर देते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है व्याधि क्षमत्व वर्सेस त्रयोस्तंभ। किसी भी विषय में प्रवेश करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जो है जरूरी होता है। तो ये विषय मैंने क्यों चुना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चरक सूत्र अध्याय पहले दीर्घंजीविती अध्याय में जो ट्रायड्स का वर्णन है, प्राइमरी ट्रायड्स हैं वो त्रिदंड और त्रिस्तंभ है। त्रिस्तंभ मतलब वात पित्त कफ और त्रिदंड मतलब सत्व आत्मा शरीर, और इसी से रिलेटेड मतलब 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो वो हमारा होता है त्रैस्तेष्णी अध्याय, 11वां अध्याय चरक सूत्र 11 का। और वहां पे ऐसे 7 ट्रायड्स वर्णित है ना। इनके अलावा भी ट्रायड्स हैं, पर वहां पे 7 ट्रायड्स वर्णित है। और उसमें जो एक सीक्वेंस है, पहले एषणा की बात की गई है, त्रय एषणा की बात की गई है, फिर उसके बाद जो आता है हमारा त्रय उपस्तंभ आता है, उसके बाद त्रिविध बल। तो ये जो सीक्वेंस है, त्रय उपस्तंभ के बाद त्रिविध बल का आना, तो ये मेरा इंटरेस्ट का विषय है कि जब त्रिदंड के लिए हम त्रि उपस्तंभ लेते हैं तो त्रिविध बल की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि बल जो है वो त्रिविध सहज है, बीज भाव से आता है ना। कालज जो है वो अवस्थिक है, बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, उसमें हम ज्यादा कुछ चेंज नहीं ला सकते, वो तो आना ही है। पर युक्त के बल इस्तेमाल करके, जैसे आज कोविड की वैक्सीनेशन इस्तेमाल की दी जा रही है, तो हम जो है, और हमारा जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या हो कि जिससे व्याधि क्षमत्व हमें मिले, हमें हमारी बॉडी को बल मिले, तो वो है त्रय उपस्तंभ। जिस तरह से जो है आर्यभट्ट का जो बोला जाता है कि 0 जो है वो कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद में उसका है, मुझे तो लगता है सब चीज का कंट्रीब्यूशन जो है भारत से ही गया है। भारत जो है बहुत ही मतलब संपन्न राष्ट्र है, और जो है सारे जो ट्रायंगुलर बिल्डिंग्स, पिरामिड्स आप देखते हैं, बॉडी माइंड सोल का भी जो हमारा है वो यहीं से मतलब जो है उत्पन्न हुआ है। तो जो एक त्रिसूत्र आयुर्वेदा है धातु साम्य क्रिया के लिए, वो जो ट्रायड्स है मतलब एक बल देता है। मैं मेट्रो में भी जाती हूँ, अगर जर्क लगता है तो मैं उसके फ्लोर के साथ अपने लेग्स को ट्रायंगुलर शेप में बना लेती हूँ। तो इसका मतलब है कि प्राण एषणा जो पहली एषणा है उसके लिए जो है ट्रायड्स का जो है 7 ट्रायड्स में से भी स्पेशली जो है उपस्तंभ जो है हमारा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 7 ट्रायड्स सभी को पता है, इनकी सीक्वेंस भी सभी को पता है।
यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ। त्रयोस्तंभ हमारे टॉपिक पे मैं आती हूँ। इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति, है ना, त्रिविध बलम इति सहज कालम इति, ये भी हो चुका है। पर स्नातक अवस्था में जब हम लोग हमारे एक्चुअली मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ गुरुकुल कांगड़ी में, उस वक्त रोग निदान का कोई टीचर भी नहीं था यूजी लेवल पे, तो माधव निदान का एग्जाम मैंने कैसे दिया मुझे ही पता है। तो जो स्नातक की भ्रामक स्थिति होती है वो क्या होती है कि वो तंत्रण की युक्ति को समझ नहीं पाता है। तो जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को हमेशा सेक्स से रिलेट करता है ना। तो पर ये दृष्टि जो है बहुत दिन बाद जो है पढ़ते खुली कि नहीं, सेल्फ कंट्रोल इज ब्रह्मचर्य। तो आज के जो मेरे स्टूडेंट्स भी अगर इसमें जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये एक सुविधा है कि मेरी जो ये ओपिनियन है, अब तो सबको बहुत कुछ मतलब पता लग गया है, पर मौलिक पृष्ठभूमि हमें आयुर्वेद में समझने के लिए मौलिक पृष्ठभूमि बेसिक फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम प्राण ऐष्णा की बात कर रहे हैं। प्राणी कौन होता है? जिसमें प्राण प्रतिष्ठित होता है। प्राण जो है वो अनुवर्तन की योजना है ना। अनुवर्तन जो है आपका जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस समझ लीजिए, और समवायता को बार बार मैं अगर इस्तेमाल करूंगी तो वो बॉडी फ्रेमवर्क है। चरक और सुश्रुत में कोई अंतर नहीं है। एमडी के काल में हम लोग इसमें अंतर देखते हैं, पर इसमें कोई अंतर नहीं है। चरक जो है कोष्ठ से शाखा को देखता है और सुश्रुत जो है वो शाखा से कोष्ठ को देखते हैं। चरक अनुवर्तन प्रधान है और सुश्रुत समवायता प्रधान है। पर दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अनुवर्तन है, क्योंकि अगर सर्जरी कर दी, शल्य निकाल दिया, तो उसको भरने के लिए भी अनुवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए चरक जो है वो चिकित्सा में श्रेष्ठ है। तो अब ये प्राण जो है वो कहाँ से हमें मिलता है? तो सब लोग एमडी एंट्रेंस में जो है तुरंत 12 प्राण बता देते हैं और मतलब जो है वो तुरंत लगा देते हैं कि अग्नि सोम वायु सत्व रजस तम पंचेंद्रियाणि भूत आत्मेति प्राणा। पर इस प्राण का मतलब क्या है और प्राणाभिसर बनना भी हम चाहते हैं। तो एक भारत के प्राणाचार्य नाम की बुक है रत्नाकर जी की, एनआईए की जो है, वो मुझे लाइब्रेरी से प्राप्त हुई थी। बहुत ही अच्छी बुक है। भारत का इतिहास का गौरवमयी जो है इसमें वर्णन है। वो इस फील्ड के हैं भी नहीं, पर उन्होंने बहुत अच्छे से जो है भारत के प्राणाचार्यों का वर्णन किया है। पर प्राणाचार्य है कौन? मतलब मेरे भाग्य से मुझे जो है मुझे कई प्राणाचार्य मेरे अपनी लाइफ में मिले हैं, जिसका मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ईश्वर से बहुत ज्यादा धन्यवाद, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आस्तिक भी हूँ और अपने साइंस पे बहुत ज्यादा आस्था भी रखती हूँ। मुझे जो भी टीचर मिले हैं उनका कहीं ना कहीं ईश्वरी नाम जुड़ा हुआ है, चाहे वो पवन सर हो, चाहे वो श्री कृष्ण खांडेल सर हो, चाहे हितेन वाजा सर हो, वो हितकारी हैं सबके लिए, चाहे वो कोई भी हो, मतलब जो भी मिले वो ईश्वरी रूप में हमारे। तो अब प्राण को समझने के लिए, प्राण ऐष्णा के लिए जो है आयु चाहिए, है ना। तो आयु को हम कैसे बना सकते हैं? अब हम ये जो डेफिनेशन है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्य अनुबंध पर्याय, पहले मैं ये सोचती थी कि सारे पर्याय हैं आयु के, पर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ये पर्याय नहीं होते हैं, ये कर्म प्रधान उसकी संज्ञा होती है। तो अब हमें समझना है कि जो अग्नि सोम वायु जो है, यहाँ पे नीचे देखिए इस पिक्चर में, तो ये प्राण जो है, 12 जो गिनाए मैंने वही प्राण आ रहे हैं। तो ये जो प्राण है ये हमें किससे मिलता है? ये हमें परलोक से मिलता है। परलोक में चाहे वो औषध हो चाहे आहार हो, आहार जो है हमारा रस प्रधान होता है और औषध वीर्य प्रधान होता है ना। तो जो शरीर है हमारा वो भी इनएक्टिव है ना। तो उसको ये प्राण बाहर से मिले आहार के रूप में। फिर जो हमारे पंचेंद्रिय प्राण है वो किसको पोषण देते हैं? हमारे जो है निद्रा से मिलती है। वो हमारे जो है इंद्रियां 10 हो गई, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। और एक उभेंद्रिय होता है सत्व मन, है ना। उसको कहाँ से प्राण मिलता है? सत्व रजतम से प्राण मिलता है। और आनंद से किसको प्राण मिलता है? वो भूतात्मा प्राण आत्मा को मिलता है। ये सारे इनएक्टिव चीजें हैं, पर वो एक्टिव जीव का निर्माण कैसे करते हैं? ये 24 तत्व हैं। मतलब मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 तत्व हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं। पर हमारा सिद्धांत कितना सैद्धांतिक है कि यहाँ 24 तत्व, चतुर्विंश तत्व, पुरुष राशि पुरुष की बात की है तो 24 ही में स्थिर रहेंगे। इससे एक ना अधिक होगा ना एक तो बढ़ेगा। तो ये जब सारी चीजें जो निश्चित काल दिशा के साथ एक साथ जुड़ते हैं, है ना, अनुगृहणाति करते हैं। मतलब टीचर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उसमें कुछ दुष्ट स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, पर क्लास का एक लक्ष्य लेकर के एक पीरियड उसको पढ़ाना होता है। तो सब उसमें उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है, चाहे वो इंटरेस्ट से करे चाहे डांटे, पर उनको एक साथ लेकर के एक विषय को जो है का ज्ञान कराता है। तो उसी तरीके से जो ये कायाग्नि है, कायाग्नि का ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे चीजों को अनुग्रहित करता है और जो है ये हमारे उसको शरीर को
जब तक इसका संबंध रहता है शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवितम, तब तक जो है हमारी आयु रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक फंडामेंटल समझने के लिए, सिर्फ ये श्लोक नहीं है। तो हमारा वही चीजें हो रही है, रिपीट हो रही है कि आहार जो है अग्निशमन, आहार अनुवर्तन का माध्यम है, निद्रा पंचेंद्रियाणि पोषण करता है। जैसे निद्रा जो है रिपेयर होती है, हम सोते हैं, वो जरूरी है। धातु साम्यता निद्रा के श्लोक में लिखा हुआ है, तो निद्रा जो है वो धातु साम्य, चिकित्सा का लक्ष्य क्या है, धातु साम्यता ही तो है। तो अगर हम सो नहीं रहे तो अब हम ये बहुत गलत कर रहे हैं। आनंद, ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल जो है वो क्या है, सत्व, मन और आत्मा का पोषण है ना। तो इसमें बहुत डिटेल चीजें भी आती हैं। अब ये बहुत ही गूढ़ चीजें हैं। चरक 8 सूत्र स्थान में जो चौथा श्लोक है, उसमें मन के 3 प्रविभाग कहे गए हैं। मन जो है वो इंद्रिय संयुक्त मन होता है, उसको पोषण निद्रा से मिलता है। सत्व जो टर्म है वो शरीर संयुक्त सत्व है, उसको पोषण किससे मिलता है, आहार से मिलता है। और जो चेतस है टर्म, वो क्या है, आत्म संयुक्त चेतस है, उसको आनंद, उसको किससे पोषण मिलता है, ब्रह्मचर्य से मिलता है। तो एक ये बात हो गई है ना। तो कायाग्नि जो है वो हृदय में रहती है। सब लोग सोचते हैं कि कायाग्नि जो है वो जठराग्नि ही है, नहीं, पर ये तंत्र युक्ति है, तंत्रण की युक्ति है। मतलब इसका जो इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कि पढ़ने वाले को सब कुछ दिखता है, नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो कायाग्नि जो है वो हृदय में रहती है, क्योंकि जो चिकित्सा प्रवृत्ति चरक सूत्र स्थान 16 में जो है एक लिखा बताया गया कि विशुद्ध कोष्ठ से कायाग्नि अभिवर्धते। विशुद्ध अगर कोष्ठ हो जाता है तो कायाग्नि की अभिवृद्धि होती है। और ये 2 श्लोकों को मिला करके ही जो है कायाग्नि की स्थिति स्पष्ट होती है। जो नीचे वाला श्लोक है उसमें जो है वो क्या है, कल्प स्थान का जो है वो चरक का अध्याय है, जिसमें कि तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म, ये फिजियोलॉजी का वर्णन कर रहा है कि कैसे जो है वो वमन कराया जाता है। तो ये इन सब द्रव्यों का इस्तेमाल करके हृदय में उपयोग, उसको हृदय से मतलब तक लाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, विशुद्ध कोष्ठ से अग्नि कायाग्नि अभिवर्तते। तो ये जो है कायाग्नि जो है वो जठराग्नि नहीं है, बल्कि ये पूरी शरीर की अग्नि है। और ये तीनों अग्नियों का मूलक है, जठराग्नि यानी कोष्ठाग्नि, तत्वाग्नि, महाभूताग्नि। तो ये तंत्रण की युक्ति है। तो ये कायाग्नि मुझे भी जो है इसका भान जो है काफी लेट हुआ, पर ये अपने आप में एक नया मेरे लिए था, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। फिर दूसरी विशेषता क्या है, जो लोक में है वो पुरुष में है, मतलब जो परलोक मतलब आउटर वर्ल्ड, और जो इहलोक मतलब ये शरीर है ना। और इन दोनों के बीच की स्थिति किसकी है, त्वचा की है। तो जो लोक में 24 तत्व हमने देखे अभी, है ना, वो जो है अगर कायाग्नि का संयोग पा लेते हैं तो वो बॉडी में धातु बन जाते हैं, है ना। त्वचा जो है सर्वव्यापक है ना। विनायक सर के बोला था कि त्वचा की बहुत इंपॉर्टेंस है, वाकई बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यह सर्वव्यापक इंद्रिय है और यह परलोक और इहलोक के बीच की स्थिति है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्व जब काल और दिशा से संपर्क बना लेता है तो वो द्रव्य बन जाता है, द्रव्य से पदार्थ बनता है और पदार्थ के समूह से जगत का निर्माण होता है। अब त्रयोस्तंभ में निद्रा ब्रह्मचर्य जो है विहार में आता है, जो बिल्कुल कॉस्टलेस है ना, और इनक्रेडिबल है। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। और आहार है ना, वो डाइट है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, ब्रह्म में स्थिति, मतलब ब्रह्म में चरण करना, आनंद का। पवन सर सबकी हेल्प करके आनंद लेते हैं, उनकी एनर्जी का सोर्स भी है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे यही लगा। तो और जो है खंडेल सर जो है वो काय वाक मन में इतना ज्यादा कंट्रोल है उनका, उनका जो ब्रह्मचर्य वो है ना। उनका आनंद है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, जितना भी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सब देना, है ना। तो ये अलग अलग लोगों का आनंद का लेवल है, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी उनके आनंद से भी मिला। भले वो सोते ना हो, भले वो ढंग से आहार ना ले पाते हो, पर आहार जो है फोरमोस्ट है तो फोरमोस्ट है। देहो आहार संभव है तो है, उसको पहले हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। निद्रा सेकंड पे आता है, सोना तो हमें है ही है, ब्रह्मचर्य होता रहेगा, आनंद लेते रहिए, पर दोनों चीजों को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि आयुर्वेद में जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब मैं पढ़ाती हूँ तो निदान के सामान्य विशिष्ट वेद तो सभी ने बताए हुए हैं, मुझे आहार रूपेण निदान दिखाई देता है और विहार रूपेण ही निदान दिखाई देता है, क्योंकि उससे ही मैं पथ्य अपथ्य का निर्धारण कर लेती हूँ मेरी ईज के अकॉर्डिंग क्लिनिकल डेस्क पे। तो निदान परिवर्जन श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है सुश्रुत उत्तर तंत्र में पहले चैप्टर में। तो निदान परिवर्जन जो है वो चिकित्सा है, उसमें जो इन्हीं दोनों विषयों का ध्यान रखना होता है ना। तो पथ्य वो हो जाता है, और अगर इसमें चूक हो जाए, पथ्य और अपथ्य में अंतर क्या है कि डिजीज अवस्था में अगर हम निदान का सेवन कर लेते हैं तो वो 4 गुना मारक हो जाता है, तो ये अपथ्य होता है। अब ये मास्टर स्लाइड है, इसमें
सॉरी, त्रयोस्तम इति आहार स्वप्न ब्रह्मचर्यम इति। 2 ही रोग है, मानसिक और शारीरिक। इनका मूल कारण क्या है? प्रतिरोधक क्षमता का घटना। ठीक है, अब ये बताइए कोविड-19 का वायरस बलवान हुआ है कि हम निर्बल हुए, है ना? तो क्यों हम निर्बल हुए हैं? क्योंकि हमें आहार के विज्ञान का अभाव है। आयुर्वेद में इतना वास्ट, इतना साइंटिफिक आहार का विज्ञान है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद अपने पिछले 1 साल से मैंने इसको बहुत नियंत्रित किया है। उसी का जो है मैं फलश्रुति जो है आपको आज यहाँ शेयर करूंगी, जो भी प्रैक्टिकली मैंने पाया है टेक्स्ट को पढ़ करके। निद्रा जो है उसका विज्ञान का अभाव है लोगों को। बच्चों के पास मोबाइल है, कोई भी मेरा स्टूडेंट जो है 9 बजे सोता नहीं है, तो क्या करेगा? मोबाइल सबके हाथ में है, 2 बजे तक सोते हैं, जबकि सर्केडियन रिदम बोलता है कि सोना चाहिए 9, है ना? और 11 to 2 के बीच में हमें डीप स्लीप में होना चाहिए, क्योंकि सारे हार्मोन, मेलाटोनिन जो है वो सब सीक्रेट तभी होता है। आनंद जो है वो लोग जो है धन ऐष्णा करने लगे हैं, प्राण ऐष्णा करने लगे हैं, पर कोई भी परलोक ऐष्णा नहीं कर रहा है ना? क्योंकि ये शरीर जो है वो कैवल्य प्राप्ति के लिए हुआ है। इसका रेफरेंस भी आगे दिया जाएगा। सिर्फ मोक्ष प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है, उसके लिए हम जीवन मोक्ष कार्य बंधन कार्य कर रहे हैं। तो ये तीनों का जब संयोग योग होता है, तीनों का जो बैलेंस होता है, अनुग्रहण होता है, तब शरीर का बल बढ़ता है। अनुग्रहणाति होता है तब शरीर का बल बढ़ता है, युक्तिकृत बल बढ़ता है। तो पहले टॉपिक जो है वो आहार आता है। इसमें क्या है? सभी चीजें अन्न में प्रतिष्ठितम है। प्राणा प्राणभितानाम अन्नम लोकविधि धावति वर्ण प्रसाद स्वस्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुगम तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्वम अन्नम प्रतिष्ठितम। सारा कुछ जो है अन्न में प्रतिष्ठित है। वर्ण प्रसाद, स्वर, जीवित, प्रतिभा, सुख, तुष्टि पुष्टि बल मेधा, सारा कुछ। अब कुछ और रेफरेंसेस मिले हैं कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। देखिए ना, जब फास्ट रखते हैं तो आपका मन कितना शुद्ध हो जाता है। तो इसमें कोई रिसर्च करने का विषय है क्या? तो हमारा जब सत्व शुद्धि होता है उस दिन हमारी पढ़ाई भी बहुत होती है, स्मृति लब्धते, और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है अगर हमें स्मृति का लब्ध हो जाता है। तो ये छंदोपनिषद जो है इसका श्लोक है ये। और उसका जो है एक और श्लोक है कि अन्नम, अन्न का जो है जो अशित करते हैं उसका त्रेधा विधीयते, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो पहला स्थूल पार्ट है वो पुरीष में, जो मध्यम पार्ट है वो मांस में, और तीसरा कनिष्ठ पार्ट जो है वो मन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आहार का हमारे मन पे बहुत असर है। हम जो है आजकल वर्क प्लेस पे या घर में कलह जो होती है उसका मेन कारण वर्कलोड नहीं है, आपका आहार है। ये बहुत ही बड़ी चीज मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसको चेंज करने से आपका मन चेंज हो जाता है ना? अन्नमय ही मलिन आहार शील से करेंगे तो मलिन ही प्रकृति बनेगी आपकी, मलिन नेचर बनेगा, है ना? तो अन्नमय ही सौम्य बना। और इष्ट वर्ण गंध स्पर्श, ये सारी चीजें जो है अगर आहार में हम ध्यान से रखेंगे तो सत्व ऊर्जती। आजकल क्या होता है, खाना खाते ही नींद आने लगती है। तो इसका मतलब जो है जो शुद्ध आहार होगा, जो सत्व को ऊर्जा देना चाहिए, वो अगर आपको निद्रा ला रहा है ना? जैसे हम लोग पता नहीं था हमें कि हम लोग को अजीर्ण रोग है एक तरह से, तो हम लोग खांडल सर की क्लास में सोते थे। अब तो वो मौका आने वाला नहीं है कि सर हम लोग को बैठ के पढ़ाएं। तो पर क्या है, हमारी ऊर्जा का जो है, ऊर्जा जो होनी चाहिए थी उस वक्त वो नहीं है ना? शरीर धातु व्यूह बल वर्ण इंद्रिय, है ना? तो ये 7 कर्म। तो आहार जो है, डाइट जो है, एस्पेक्ट ऑफ डाइट इज वेरी वास्ट एंड वी आर इनबॉर्न रिच बाय डेस्टिन बर्थ इन भारत। भारत मतलब कंटिन्यूअस प्रकाश का रत रहना, ठीक है? ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोली गई है। और विदेशों में आप घूम करके आइए तो आपको भारत ही श्रेष्ठ लगेगा, अगर यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ का पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए तो। जियोग्राफिकली, ट्रेडिशनली और कल्चरली रिच है। 4 ही प्रकार के आहार होते हैं, आप कहीं से भी कैलकुलेशन करके देख लो। अशित, खादित, पीत और लीड, है ना? कोई भी आप खाना के प्रकार लेके आओ। तो ये इतना सैद्धांतिक विषय है कि कहीं कुछ चेंज हो ही नहीं सकता इसमें। तो और चरक सूत्र पहले के दीर्घंजति अध्याय में देखें तो वहां से ही आहार की शुरुआत हो गई। जांगम पार्थिव द्रव्यों का फल मूल दूध नमक आदि का हो रहा है ना? मात्रा शिति अध्याय में जो है वो अभी पाठांतर में करूंगी, क्योंकि उसको बहुत खाना खाने से पहले हमेशा जैसे थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पाठांतर जो मैं भी करूंगी वो करना चाहिए, ताकि हम कंट्रोल खाएं। तो मात्रा शिति अध्याय में मात्रा का बताया गया है। यज्ञ पुरुषी अध्याय में जो है क्या अग्रणी हित है खाने में और अहित क्या है ना? ये भी विशेष तौर से जब आपको अजीर्ण ना हो उस हिसाब से लिखा गया है ना, ऋतु अनुसार हमें उसको
कल्पना करनी पड़ेगी कौन सी ऋतु में हम क्या खाएं। ऐसा नहीं है कि जो हित है वो हमेशा ही हित होगा, मात्रावत भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आत्रेय भद्र काव्य अध्याय जो है उसमें विरुद्ध आहार के 18 प्रकार हैं। अभी लॉकडाउन में सभी ने कोविड-19 में खूब यूट्यूब से कुकिंग करी है, सीखा भी है, पर हमेशा आप सीखिए, पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो है वो विरुद्धाहार ना बना रहे हो आप। जैसे आप कढ़ी जो है वो दही में बनाएंगे तो वो विरुद्धाहार ही है, क्योंकि तप्त दही जो है वो विरुद्ध बताया गया है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि शहद को भी तपने का ना, हनी चिली पोटैटो में आप शहद डाल रहे हैं तो आप ये तो कर सकते हैं ना, फ्लेम बंद करके शहद मिलाएं। तो ये चीजें आहार की कल्पना जो है भारत की पढ़ी लिखी और जागरूक, मतलब ये तो पूरे, मतलब मुझे लगता है भारत में एक बुकलेट बना देनी चाहिए जो आहार का विज्ञान है। उस पे एक्चुअली हमारा जो है, जो बच्चे अगर हम उनको सही दिशा दे पाएंगे तो यूथ अपने आप अच्छी बनेगी और फिर उस विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। अन्नपान विधि अध्याय जो है वो 27वां चैप्टर है। ये तो बहुत ही वास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टार लगा रखा है। त्रिविध कुक्षीय विमान, मतलब अभी ये कि लिक्विड सॉलिड कितना खाना है सब कुछ डिवाइड करके बताया गया। एम्प्टी भी रखना है ना, भूख से हमेशा 25% कम खाएं ताकि वायु के भ्रमण के लिए भी स्पेस रहे, स्थान रहे। फिर चरक सूत्र 46 में अन्नपान विधि अध्याय, अन्नपान विधि की बात करी जाती है, तो वो भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें भोजन का क्रम का विशेष उल्लेख है कि हम क्या करते हैं जो है पहले कुछ भी खा लेते हैं फिर बाद में मधुर खाते हैं। इसमें पहले मधुर खाने को बोला गया है, मध्य में जो है अम्ल और लवण खाने को बोला है, और रेस्ट ऑफ द रस जो है बाद में खाने को बोला गया। फिर चरिक जो शरीर विचरण शरीर अध्याय है, आहार परिणाम का भाव सभी जानते हैं कि ऊष्मा वायु क्लेश स्नेह काल कितना उपयोगी है आहार में। और रस विमान में अष्ट विधि विशेषायतन बताया गया, जिसमें प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग का और उपयोग संस्था उपयोगिता का विचार करके। क्योंकि ये क्यों विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोगा सर्वेपि मंदाग्ने सूत्राणि मुद्राणि च अजीर्णं मलिनाश्च जानते मल संचयात्, मतलब सभी रोगों का मूल जो है आयुर्वेद में देखेंगे मंदाग्नि। तो क्यों ना अपने आहार की जो व्यवस्था है उसको भी ठीक कर ली जाए, है ना। अन्नपान में 12, मैं इतने डिटेल में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ही वास्ट साइंस है, तो उसमें 12 है। अन्न और पान बोला गया है, मतलब जो खा सकते हैं और पान, क्योंकि अन्न जो है और ये जो हमारे फिटनेस आइकन्स हैं ये आयुर्वेद से रिलेटेड नहीं है, पर आई होप कि आगे जो है एक फिटनेस आइकन हमारा कोई वैद्य भी हो जो आए, क्योंकि सेलिब्रिटी है और इनका नाम जरा सा भी कुछ करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो जैसे रुचिता दिवाकर है, इसकी थाली की मात्रा देखिए तो अपने आप आहार मात्रा समझ में आ जाती है ना। तो वो हमारे आयुर्वेद में कहा ही गया है ना। मोदी है इसे फिट रहता है क्योंकि योग करता है, ठीक है। मिलिंद सोमन जो है नंगे पैर दौड़ता है ना। भारत को का नाम आगे कर रहा है। पर इन लोगों ने कहीं ना कहीं आयुर्वेद को अपना रखा है। आप इनकी जो है इंटरव्यूज वगैरह भी हुए थे, उसको मैंने सुना भी था कि मिलिंद सोमन जो है वो जो है डेट्स खाता है मिठाई की जगह, है ना। तो ये द्राक्षा जो है हमारे फलों में बताया ही गया है और खरजूर भी बताया गया है ना। तो जो आयुर्वेद में जो किताबों में हमारी मेनली बृहद संहिताओं में है वो हमारे भारत की दृष्टिकोण से ही लिखा गया है। उसमें जो है वही खाएं, उसमें जो नहीं है वो नहीं खाएं, पर ऋतु का विचार करके मात्रा का विचार करके जरूर खाएं। फिर जो अन्न होता है वो धातुओं में प्राण को धारण करने की क्षमता वाला द्रव्य है, और पान जो है धातुओं में प्राण वहन करने की क्षमता वाला द्रव्य है। तो ये जो है अन्न जो है वो हमारा अनुवर्तन का माध्यम है, और पान जो है हमारा समवायता का माध्यम है। मतलब समवायता मतलब धातु का फ्रेमवर्क बनाने का माध्यम है, वो हर जगह पहुंचाता है उसको, है ना। बिना लिक्विड उसके तो पहुंचेगा नहीं। तो प्राण उदक अन्न जो है इतना महत्वपूर्ण स्रोतस है क्योंकि इनकी चिकित्सा भी एक साथ बताई गई है। प्राण उदक अन्न वहां अगर जो है उसकी स्वास्थ्य की चिकित्सा प्राण की बताई गई है, उदक की जो है तृष्णोपशमनी चिकित्सा बताई गई है, और अन्न की आम प्रदोषी की। तो ये आम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो है उसमें। तो अन्न पान का पाठांतर जो है इसलिए जरूरी है, या किसी भी चरक या सुश्रुत को क्यों याद करना है आज बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब तक वो कंठस्थ नहीं होगा तब तक वो हृदयस्थ नहीं होगा, और आपके हृदय में नहीं है तो आपको क्लिनिकल डेस्क पे दिखेगा भी नहीं। जब से मैंने ये श्लोक याद करने शुरू किए हैं, मुझे सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं मॉडर्न वाला तो छोड़ू यार, ये मतलब मुझे पेशेंट उस हिसाब से, मतलब काल और दिशा भी उसी तरह से बनती जा रही है। तो भाषा भावनाओं का प्रश्न होती है, जिसमें संस्कृत भाषा बहुत ही वैज्ञानिक अर्थपूर्ण तत्वबोध है। प्लीज संस्कृत से डरे नहीं, ये हमारी माँ है, आयुर्वेद की माँ है। अगर माँ से हम द्वेष करेंगे तो वो हमें कभी आ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी परेशानी यही है। मेरा बस चले तो पॉलिसी मेकर्स को कह दूं कि एलकेजी से ही जो है संस्कृत पढ़ाना शुरू करो, नहीं तो ये बच्चों का डर जाएगा नहीं बीएमएस के लेवल पे। तो हिताशी से आप मिताशी से आप
स्यात् काल भोजी जितेन्द्रियः पश्यान् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विश्वासनात् आहार मात्रा पुनरग्निबलापेक्षणी अन्येन कुक्षे द्वावंशो पानेनेकं प्रपूरयेत् आश्रयं पवनादीनां चतुर्थम अवशेषयेत्। ये त्रिविध कुक्षी चरक विमान का है। अब हमें खाना कब खाना है, ये मात्रा तो बता दी इसने कि हमें अपनी अग्नि, क्योंकि पुरुषम पुरुषम वृक्ष की बात कर दी जाती है, मेरी अग्नि जितनी है उतनी जरूरी नहीं है कि आपकी है। तो अन्न के 2 हिस्से को जो है सॉलिड से भरना है ना, एक हिस्से को पान से भरना है और शेष जो है पवन आदि के लिए छोड़ देना है। और अब भोजन कब खाएं ये सवाल उठता है। तो हर वे अन्न का कायाग्नि का विचार जो है हर मील के पहले का विचार है। तो हर मील के पहले अगर ऐसा होता नहीं है तो इसलिए उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो सर्गो यथोचितम लघुता छुत पिपासा च जीर्णाच। अगर आपको ये लक्षण नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप अजीर्ण उदावर से पीड़ित हैं, पहले आप उसकी ट्रीटमेंट करिए, आप अपने अग्नि को बढ़ाइए, तब उस हिसाब से आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। भूख प्यास सहयोदय होता है। और आप जब आपकी अग्नि अच्छी होती है तो आप जो है आतप वायु शुद्ध पिपासा को भी थोड़े टाइम तक सह सकते हैं। कोई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अग्नि बहुत अच्छी होगी। जब अग्नि बहुत अच्छी होती है तो 4 चीजें आप सह सकते हैं, शुद्ध पिपासा, आतप और वायु। तो मिश्रम पथ्यम पथ्यम च भुक्तम शमशम मतम विद्यात् अदर्शनम भुक्तस्य भूयो भुक्तस्य उपरि भोजनम अकाले बहुच अल्पम व भुक्तस्य भुक्तम तु विश्वासनम। अब ये सभी को पता है कि शमशमन नहीं करना चाहिए, अध्यशन नहीं करना चाहिए और विश्वासन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण उत्पत्ति होती है अलग अलग प्रकार। तो अब दुविधा क्या है कि हमारा जो है भोजन आयुर्वेद आधारित होना चाहिए। अन्न और पान का विज्ञान बहुत विकसित है, कुल 12 वर्गों का निर्देश है, समय की सीमितता है, इसलिए कुछ ज्वलंत विषयों को ही मैं 27 चैप्टर से उठाऊंगी, जिसका पालन स्वस्थ जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। स्वास्थ्य तो प्राप्त करना है, पर हम करते क्या है, कोई पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन से भर देते हैं, जिम जाते हैं, है ना, जबकि जिम में एक्सेसिव वर्क होता है। अगर मान लीजिए आपको अजीर्ण है तो क्या होगा, आपका जो कोष्ठ की जो दोष होंगे वो शाखा में चले जाएंगे, है ना। तो बताया भी है कोष्ठ से शाखा में, तो वो प्रॉब्लम आपको बढ़ा देगा ना कि कम करेगा। तो आपको कब व्यायाम इतना एक्सेसिव करना है, वैसी आपकी अग्नि भी तो होनी चाहिए। नियमित चेकअप और दवाइयां ली जाती हैं, गेहूं को बेहतर माना जाता है, जबकि जो है अगर देखा जाए तो चावल का उत्पादन जो है हमारे भारत में सबसे ज्यादा होता है। और एक रिसर्च भी है, उसको मैंने यहाँ नहीं डाला क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चावल खाने वाले प्रदेशों में डायबिटीज की जो है वो संख्या कम है, बशर्ते जहाँ पे गेहूं, क्योंकि गेहूं भारी होता है। अगर मोटा गेहूं खा सकते हैं, है ना, थोड़ा, तो वो ठीक है, पर चावल जो है स्पेशली जो जो उसना चावल होता है वो खाएं। चीनी को बेहतर माना जाता है गुड़िया खांड से। मैंने खांड खाना शुरू कर दिया है, चीनी को बिल्कुल, क्योंकि वो सल्फर प्यूरिफाइड होता है, तो डेफिनेटली इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो है नहीं। आयोडाइज नमक जो है अब ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, पर अभी एक हमारे यहाँ एमआर आया था तो उसने कहा रिसर्च में हाइपोथायराइड इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि आयोडीन की एक्सेस हो रही है, लोग आयोडाइज नमक खा रहे हैं। तो ये भी एक जो है बहुत ही चेतावनी भरा है संदेश हम लोग के लिए। जो हमारे सेंधा नमक जो बोला गया है पहले से कि अच्छा है, तो हम क्यों नहीं खाते हैं उसको, है ना। फिर सलाद खाने का चलन बढ़ा है, जबकि अजीर्ण है। सलाद जो है बहुत कम ही है जो कच्चा खाना चाहिए, है ना, क्योंकि गाजर प्याज ठीक है, बाकी जो सलाद आप कच्चा खा रहे हैं उसका खाने का निर्देश नहीं है, उसको शाक कहते हैं। और शाक जो है वो भर्जन करके स्नेह आलूड़ित करके खाना चाहिए। सब्वे वाला थोड़ा ठीक भी करते हैं कि स्नेह तो ऑलिव ऑयल तो डाल देते हैं, पर फिर भी भर्जन तो नहीं होता है ना। साथ ही स्प्राउटेड, जिसको सुश्रुत ने वीरुड़ कहा है, सुश्रुत 46 में अन्नपान विधि में देखिएगा, तो उसको खाने का प्रचलन बढ़ा, जबकि वो श्लेष्म पित्त को बढ़ाता है ना। तो अगर अगर खाना भी है, मान लीजिए आपको आदत पड़ गई है, मूंग की दाल आपको लगता है कि वो तो लघु होती है और कच्चा खा सकते हैं, तो उसको छोड़ा छौक करके उसको पका करके अग्नि संस्कार से उसको लघु बनाइए फिर खाइए। लाल मिर्च हरी मिर्च जो है खाने का प्रचलन बढ़ा, जबकि हमको, मैं पुरी में थी तो उसको लंका बोलते थे, तो मैं सोचती थी इसको लंका क्यों बोलते हैं, पर पता लगा कि ये लोकल लंका इसलिए बोलते हैं कि ये श्रीलंका से आया हुआ है, और जो है ये जो है एसिडिटी को बढ़ाता है और क्रोध को बढ़ाता है। तो इसका जो है काट हम कैसे कर सकते हैं, हम अदरक खा सकते हैं, काली मिर्च खा सकते हैं। और अभी दुष्प्रचार क्या हो रहा है, काली मिर्च से जो है एसिडिटी बढ़ती है। तो एसिडिटी वाले पेशेंट को नहीं खाना है, पर नॉर्मल पेशेंट को, नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति को काली मिर्च से कोई ज्यादा भय नहीं, अगर वो मात्रावत खाए। हरी मिर्च लाल मिर्च जो है ना वो ये तो हमने बता ही दिया। वैद्य को तीक्ष्ण, अगर हमें हमारे प्रोफेशन में रहना है तो हमें क्या है, हमें तीक्ष्ण एक्टिविटी करनी होती है, क्लिनिकल डेस्क पे डायग्नोसिस करना होता है, तो हमें अदरक और काली मिर्च का ज्यादा सेवन करना चाहिए। हम देखते भी हैं कि हम जब चाइनीज खाते हैं सामान, तो ऐसा नहीं है कि वो मैदा वाला आइटम खा के हमारा मूड एलिवेट होता है, उसमें भी क्या होता है, अदरक और
ज्यादातर उसमें काली मिर्च पड़ी होती है। तो रोटी नूडल्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैं आजकल अपने बच्चों पे ट्राई कर रही हूँ। सिर्फ फल ही कच्चे खाने का निर्देश है, ये ध्यान देने वाली बात है। और जो सलाद है वो हरित वर्ग में है, ज्यादातर नींबू, लहसुन, अदरक सब कच्चे खाए जाते हैं। और जो अन्नपान विधि अध्याय है उसमें ऐसा वर्णन है। और जो अन्य सलाद है वो शाक वर्ग में आते हैं, उनको स्नेहालोड़ित करके भर्जित करके खाना चाहिए। खाना खाने के बाद ऊर्जा आनी चाहिए, ना कि नींद। तो अगर नींद आ रही है तो इसका अजीर्ण करोगे, क्योंकि सत्वम ऊर्जा आती है ना। आधुनिक काल में रोटी यानी गेहूं पर विशेष जोर दिया खाने के लिए है ना, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो अभी क्या है कि चावल को हम कैसे खाएं? उसना चावल खाएं, खुला पकाएं, मंदी आंच पे पकाएं, 14 गुना पानी में पकाएं, मिट्टी के बर्तन में हो सके तो संभव होकर के पकाएं, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि इसमें पाक जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूट होता है अग्नि, है ना, और जल्दी बन जाता है। आधे घंटे के अंदर पूरे घर का जो है चावल बन जाता है। और टाइम सेट कर दीजिए, आप तुरंत उसके बाद पहुंच जाइए। और ऐसा कोई बहुत विशेष प्रेशर कुकर से बहुत ज्यादा वैसा नहीं, पर हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है ना ये। मांड को निथार दीजिए, फिर वो आप किसी डायबिटीज वाले पेशेंट को भी खिला के देखिए, उसका डायबिटीज नहीं बढ़ेगा, ये मैं दावा कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा मैं देख रही हूँ। तो जो मोटा पिसा गेहूं होता है उसको होल व्हीट कहते हैं, वो इजिली मिल जाता है। मल्टीग्रेन आटा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्वार बाजरा मिला हुआ, क्योंकि सीजनल खाना चाहिए। हमारे देश में जो हमारे नियर बाई होता है उसको खाना चाहिए, जो हमारे आसपास होता है। क्योंकि देश का भी तो बहुत और काल का भी बहुत रोल है हमारे। मूंग की दाल का उपयोग करना चाहिए, है ना, पर लघु और गुरु का भी विचार करना चाहिए, है ना। बहुत लघु भी करेंगे तो वात की वृद्धि होती है ना, विमान में बताया गया है। तो इसलिए मौज मस्ती के लिए राजमा छोला सब खाएं, पर इनको कभी कभी खाएं। और अग्नि का विचार करके खाएं, काय अग्नि का विचार करते हुए खाएं कि हमें ये खाना, क्योंकि हमारी बॉडी बता देती है कि हमें खाना भी है कि नहीं खाना। कई बार हम मन मारने के लिए लेते हैं, पर वो अपने शरीर पे माल मतलब मल का भार वहन करते हैं, और इस चीज से हमें बचना चाहिए। नमक में केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अभी मैं बता चुकी हूँ कि आयोडाइज सॉल्ट से ही हाइपोथायराइडिज्म बढ़ रहा है, ये लेटेस्ट रिसर्च है। अच्छा, आजकल पिंक सॉल्ट बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, हिमालय पिंक सॉल्ट के नाम से, और बहुत कॉस्टली भी है। पर एक जो है सुश्रुत का ही रेफरेंस है, 45वें का 21वां श्लोक, उसमें लिखा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का पानी हृदय रोग, शोथ रोग और जो है शिरो रोग और गलगुन रोग उत्पन्न करता है ना। अब जिस चीज के लिए आप खा रहे हो पिंक सॉल्ट, वो तो मतलब जो तराई इलाकों में की स्पेशली बात करी, ऐसा नहीं कि गंगा नदी वो हो गई, उन इलाकों की बात करें जहाँ पे आयोडीन नहीं मिलता है। तो जो है पिंक सॉल्ट में अगर आयोडीन सोच करके हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। कि शास्त्रता ये सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसा कुछ नहीं। जैसे सेंधा नमक एक कंपैरेटिव स्टडी हो जानी चाहिए इसमें कि क्या बेटर है क्या नहीं। तो जितना अच्छा डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आयुर्वेदिक स्कॉलर हो सकता है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। एपेक्स हॉस्पिटल में, एम्स वगैरह में भी अलॉटेड हो सकते हैं। पर हालत ये है कि वहां पे भी अलग से डाइटिशियन, इग्नू से किए हुए डाइटिशियन लग जाता है, पर कोई आयुर्वेद का बंदा वहां पे नहीं है। आहार को जो है मात्रावत खाना चाहिए, तो बता ही चुकी हूँ, पुरुषम पुरुषम विचित। हाँ, हमेशा एक ऑल इन रूल एक बना ले कि 25% हम खाएं हर मील के। तो ये आम का जो आम और मल का भारवहन जो है वो आप कम कर सकते हैं। मौसम के अनुसार खाद्य स्नेहों में तिल तेल, सरसों तेल के अलावा एरंड तेल को वर्षा ऋतु में और शुद्ध देशी घी सर्व ऋतु में इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल जो है वो ग्रीष्म ऋतु में उपयोग करें। फल ही कच्चे खाने का निर्देश है, और फलों में द्राक्षा, अनार, सेब जो है बिना सोचे खाइए। अनार के बीज हटा करके, अनार का बीज जो होता है वो गुरु होता है। ऑर्गेनिक फल सब्जियां सभी जानते हैं, क्योंकि धोनी, धर्मेंद्र, सलमान, सुशांत को भी फार्मिंग प्लानिंग में ये भान हो चुका था कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ये लोग, इनको जरूरत नहीं है, पर ये दे नो, दे आर मतलब हेल्थ के लिए कितना वो अवेयर है ना। अंतरिक्ष का तेल स्वच्छ होता है, तो रेन हम वाटर हार्वेस्टिंग से हम उसको ले सकते हैं और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। योग रक्ताकुर में आरोग्य अंगों का निर्देश है कि जो चतुर्संघास जल जो है उसको पिए, क्वाथ करके पिए। वो ये जो है सब जो है कोविड में इम्यूनिटी के लिए, बूस्टर के लिए बहुत अच्छा है पान के रूप में। और हमेशा पान जो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, सुपोष्ण पीना चाहिए। केरल में भी देखिए तो वो लोग जो है खाने के साथ सुपोष्ण पानी लेते हैं ना। तो जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना है। ये बहुत ही गलत है कि सुबह उठते ही 7-8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि हमें हमारे शास्त्र में कि अत्यंबु जो है वो अजीर्ण का कारण है। टमाटर जो है वो विलायती होता है, अगर बोलते ही भी हैं तो उसका मतलब विलायती, उसको हमारे हमारे आप आयुर्वेद में नहीं देखेंगे कि टमाटर कहीं पे है। और हमारा जो आज कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी इसके बिना बनती नहीं है। हमेशा खाने में हींग, हल्दी, हरितकी फल है, समझे। तो क्योंकि वो हरितकी जो है मनुष्य नाम माता हितकारणी कदाचित कुपित, माता तो फिर भी कुपित हो जाती है पर हरितकी कभी कुपित नहीं होती। इसका दैनिक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अभया है ये, है ना। चाय कॉफी तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। हालांकि भारत में इसका उत्पादन अग्रणी है, परंतु इसका उपयोग करना जो है वो सही नहीं है।
इंटरनल उपयोग स्पेशली, एक्सटर्नल में बालों में तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। हल्दी अदरक की चाय जो है वो ले, टर्मरिक जो ग्रीन टी हम के नाम पे हम बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, आप सिर्फ हल्दी अदरक और शहद डाल के चाय पीजिए सुबह शाम, आप देखिए आपको आपका अजीर्ण कैसे नहीं खत्म होता है। अजीर्ण अल्प भोजन, अति भोजन और अभोजन से होता है। अगर अधिक फास्टिंग करते हैं कि भाई पूजा करके ही खाना है, तो वो भी अजीर्ण उत्पन्न करता है ना। अभोजन हो गया, अति भोजन से तो अजीर्ण होता ही है, और अल्प मात्रा में भी, तो इससे मात्रा का बहुत उपयोग है। फिर उसके बाद जो है बासी और परिशुद्ध खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रिज का जितना कम से कम उपयोग हो सके उतना करना चाहिए। फ्रिज का ठंडा खाना ना खाएं, दोबारा गर्म करके ही खाएं, ना खाएं उसको, है ना। ऐसा कोशिश करें कि फ्रिज में रखना नहीं पड़े, इतना ही बनाएं, है ना। और जो है एसी और पंखे का इस्तेमाल जितना कम हो सके करें, क्योंकि निवास स्थान में जो है शयन करने का गुण अलग ही बताया गया है। रसायन वाजीकरण अध्याय में भी च्यवनप्राश का त्रिगर्भाकुटी बताया गया है, संयोग करना चाहिए। फिर अग्नि संस्कार जो है वो पाक का श्रेष्ठ पाक है। माइक्रोवेव, एयर फ्रायर वगैरह का उपयोग ना करें। अग्नि संस्कार में यूं तो चूल्हे पे बना सबसे श्रेष्ठ है, पर कहावत है ना, गैस पे बनाए खाना गैस बनाएगी, तो कोशिश करें कि जब गैस पे भी बनाए तो मंदी अग्नि या मध्य अग्नि पे, जल्दीबाजी में तेज अग्नि पे ना बनाए। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। घृत से सर्वथा परहेज रखते हैं आज के लोग, पर आप बताइए फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो लिपिड सॉल्युबल चीज के लिए होता है, उसका क्या होगा। बाइल सॉल्ट जो बन रहा है उसका क्या होगा। और जो पर्सन जो है मोटा है, उसका फैट भी जो अगर निकलेगा तो उसके लिए तो फैटी माध्यम होना चाहिए ना, तो वो सॉल्युबल किस में, पानी में होगा क्या निकलने के लिए। हा? तो अति भोजन के पश्चात जो है वो जो है भुना जीरा और अजवाइन और सौंफ जरूर लें। ये सम्यक दीपन पाचन कराता है। मल रूपी आम को बनने नहीं देता है। मल ही भारवान होता है, जिससे शरीर में अनावश्यक वजन की अनुभूति होती है, और यही अजीर्ण है। खटाई में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इमली और नींबू का इस्तेमाल करें। नींबू का हमेशा फ्लेम को बंद करने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इमली के स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता फ्लेम के साथ भी। तो क्लिनिकल टेस्ट पे जो है 70% मरीज जो है, आपको मैं बताऊं, अजीर्ण और उदावर से पीड़ित है। और दूध जीवनी है, परंतु वर्तमान में हम क्या पी रहे हैं ये तो भगवान ही जानता है। दूध अगर पीना भी है तो अगर कोई ग्वाला अगर आपको उचित मिल जाता है तो वो कपिलवट की गाय हो, उसकी हो, देशी गाय हो, है ना। और शाम को लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क जो है वो श्रमहर बताया गया है। तो शाम को हमारी जो है थोड़ा दिन भर की प्रतिक्रिया के बाद दोबारा से थोड़ी सी एनर्जी लेनी हो तो शाम का समय ही उसका उचित होता है। पानी जो है भोजन के मध्य में लेना चाहिए, ना तो पूर्व में ना तो पश्चात में। तक्र हमेशा भोजनांतर लेना चाहिए। ये ग्राही होता है, पर क्या होता है, ये ग्रहण करने में, आहार को ग्रहण करने में मदद करता है, इसलिए उपयोगी होता है। ऋतु संधि काल में विशेषता लंघन करें, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ऋतु संधि याद नहीं रहती कब से कब शुरू हो रही है, तो अगर उसका एक अलार्म लगा सकते हैं, कैलेंडर, ईयरली कैलेंडर, तो वो अपने मोबाइल में सेट करें कि अभी मुझे लंघन करना है, तो ये इतने दिन में मुझे ऐसे 14 दिन जो है मुझे ऐसे कम खाना है। तो आयुर्वेद में जो भोजन का क्रम है तो बताया ही सुश्रुत ने, है ना, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आहार वर्ग का निगमन करते हुए संक्षेप में यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे भारत के आयुर्वेदिक संहिताओं में है उसका ही ग्रहण करें, वो यहाँ के लिए श्रेष्ठ है। हम विदेशी उसमें एवोकाडो खा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ की सीजनल, है ना, आप लोग थिंक तो ग्लोबल करो, बट ईट सीजनल फूड्स एंड फ्रूट्स, सीरियल्स, नियर बाई कल्टिवेटेड आइटम्स, ऑर्गेनिक हो। पैक्ड आइटम का बिल्कुल विरोध करिए, और प्रोसेस फूड का भी, और हमेशा घर का बना ही खाना खाइए। और जो है जो, क्योंकि भारत जो है वो ऐसा कोई भी देश बहुत ही कम है जिनके पास 6 ऋतुओं का वास हो, है ना। हमें यूएस की तरह आर्टिफिशियल टेम्परेचर पे नहीं रहना पड़ता। अभी यूनिटी जो है अभी जो हुई थी, दिक्कत हुआ था, तो यूएस में क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि वहां पे सारी सुविधाएं हैं, पर उन्हें दिन भर आर्टिफिशियल टेम्परेचर पे घर में रहना पड़ता है, और वो भोजन भी डेली ताजा नहीं बनाते, ऐसा विवेक ने अपने लेक्चर में बोल ही दिया है। तो यही एक रीजन हो सकता है। और हमारे घर में जो हमारा आहार है उसमें हम औषध, मतलब हमारा औषध जो है आहार का पार्ट है, जो सारे हरित वर्ग हैं या जो मसाले हैं वो हमारी इम्यूनिटी का कारण है। संभव हो तो खुद ही आहार का पाक करें। क्या अच्छा है क्या बुरा आपसे कोई अच्छा नहीं जान सकता। भोजन के निर्माण में शरीरगत स्वस्थ मन की परिणति, मतलब अगर हम स्वस्थ मन से बनाते हैं, अपने परिवार के लिए बनाते हैं, तो मन से बनाएंगे, है ना, तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी बनाता है। और शरीर और जो मन है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और यही दो व्याधि के अधिष्ठान भी हैं। तो स्वस्थ रहकर दूसरे को स्वस्थ रखा जा सकता है। दो भोजन के बीच में विशेष अंतराल होना चाहिए, और भोजन जो हमेशा गर्म प्रवाही खाना चाहिए। सेल्फ डन इज बेस्ट डन ऐसे ही नहीं कहा गया है। अब निद्रा की बात आती है, आहार का निगमन होने के बाद निद्रा की। तो हमें स्वाभाविक और ऐशावत जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, है ना। हम सारे काम नहीं कर सकते,
तो अगर हमें सारे काम करने हैं तो हमें निद्रा को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। हमें अपने लक्ष्य को हमें हमें करना क्या है एक्चुअली, हम फोकस होकर के एक काम ही अच्छा कर ले। आइंस्टाइन ने कोई 10 काम थोड़े ना किए थे, है ना, एक काम कर ले। हाँ, तो उसको फोकस रखकर करें और ऐशना मत जिए, है ना। इच्छा तो बलात्कार, मतलब इच्छा तो बढ़ती ही जाती है कि कभी भी संतुष्ट आदमी होता नहीं है। तो जो ये रात्रि की निद्रा होती है वो सुख जो होती है वो अगर सुख पूर्वक हम सोते हैं 9 to 5, तो क्या होता है, 9 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शाम का खाना 6 बजे खा लेना चाहिए और 3 प्रहर के बाद, 1 प्रहर के बाद जो है हमें सो जाना चाहिए। तो 9 o'clock पे हमें सोने चला जाना चाहिए और कोई अलार्म सेट नहीं करना चाहिए, है ना। अपने आप नींद खुलेगी 5 बजे, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, 3 घड़ी शेष रहते हैं जो लिखा हुआ है। तो वो खुली, उसके बाद आपको शौच वगैरह से निवृत्त होकर के आपको टहलने जाना है। तो अष्टोन्नति अध्याय में जो क्या बताया गया है कि जब मन जो है, यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मनः, जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ स्लीप बताई, क्लम मान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तथा स्वप्यति मानवः। तो जो है मनुष्य सो जाता है ना, क्लम मतलब मानसिक थकान। तो बेनिफिट्स ऑफ स्लीप क्या है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सुख, दुख, पुष्टि कार्य, मतलब जो हमारा मोटापा और पतलापन है वो भी उसका कारण क्या है, निद्रा है। वृषता, क्योंकि हम डाइट तो क्रैश डाइटिंग कर लेते हैं पर ये नहीं सोचते कि हम सो कितना रहे हैं। वृषता, क्लीबता, ज्ञानम, अज्ञानम, जीवितम च। ठीक है, अब ये जो है हमारे लिए क्या फिटनेस आइकन्स थे, पर इनको एमआई होना इस एज में जो है और शंट लगना, तो जो है ये अपने आप में बताता है कि ये आहार जो है इनका कॉम्प्रोमाइज था या निद्रा कॉम्प्रोमाइज था, इनका शेड्यूल, है ना। क्योंकि दोनों ही स्पोर्ट्स में है तो आनंद की तो कोई कमी नहीं होगी, एक डांस में है तो कोई आनंद की तो कोई कमी नहीं होगी। आहार और निद्रा एक वजह हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत जो है वो 3 घंटे ही सोता था, है ना। तो उससे क्या होता है कि विचारों में, मतलब जो आज का यंग जनरेशन है वो कम सोता है, तो क्या है उसका जो है आनंद जो है वो निद्रा जो है वो धातु संहिता होनी चाहिए, तो मन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मन का प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए जो है वो जो कहते भी हैं कि रिया की यारी में चला गया, तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी निद्रा रीजन थी। भले सीबीआई कुछ भी करे, पर मुझे लगता है निद्रा एक बहुत बड़ा रीजन था उसकी डेथ का। निद्रा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ हेल्दी, हम इसको तो मान लेते हैं हेल्दी वेल्दी एनवायरमेंट, पर हमारे आयुर्वेद में क्या कहा जा रहा है, ये इतना इनक्रेडिबल और कॉस्टलेस है, इसको कोई नहीं सुनता। धातु साम्य पहला ही श्लोक में, मतलब जो 421 में बताया कि धातु साम्य करता है, पर इसके बावजूद भी हम सो नहीं रहे हैं। ये और बलम स्थैर्य, मतलब जो हमारी उत्पत्ति होती है वो तो आहार करता है। निद्रा क्या है, हमारी स्थिति के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बच्चा जो है जब पैदा होता है तो कैसा उसकी बॉडी होती है, और जब 4 महीने में वो सोता रहता है तो उसकी कैसी बॉडी हो जाती है। तो आप ही सोचिए आप अपने हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं। अर्ध रोग हरी निद्रा वैद्य की शुभाषितम साहित्य में भी बोला गया है, जो बीएमएस के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है, पर फिर भी कोई सोता नहीं है स्टूडेंट, है ना। फिर जो है निद्रा वेग विधारण करने से जंभा, अंग, मर्द, तंद्रा ये सब तो रहेगा ही पूरे दिन भर, शिरोरोग, अक्षिगौरम होगा, है ना। तो इसलिए जो है स्लीप प्रोमोटिंग मेजर्स के लिए हम अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, ग्राम पौधिक रसाह, शाले अन्य सदधि, क्षीरम, स्नेहो, ये सब चीजें जो है हम कर सकते हैं। क्योंकि समय की सीमितता है तो थोड़ा मुझे सर्केडियन रिदम ये मॉडर्न कहता है, हम मान लेते हैं, हमारे यहाँ बोल रहे हैं तो कोई सुनेगा ही नहीं, है ना। ये क्या है, हमारा बॉडी क्लॉक है ना। ये एक और चीज मुझे मिली कि जो ब्लू लाइट होता है, एलईडी मोबाइल का लाइट, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। वो अलर्टनेस को बढ़ाता है, रात में नींद नहीं आती लोगों को इस वजह से। तो अपना स्विच ऑफ करना चाहिए मोबाइल। कब करना चाहिए, 8 बजे के बाद कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो मेलानोप्सिन होता है वो ब्लू लाइट सेंसिंग प्रोटीन होता है, और ये कॉजेस करता है अलर्टनेस को, और डार्कनेस जो है वो प्रमोट करती है स्लीप को। और ये जो मेलानोप्सिन होता है ये जो है सिर्फ 5000 न्यूरॉन्स में ही है, और आईज हार्ड वायर्ड टू मास्टर क्लॉक इन द ब्रेन, बी स्पेसिफिक फॉर चूजिंग मोबाइल एंड नाइट बल्ब्स। फिर ये है कुछ जो कार्डियक रिदम्स के डिसरप्शन के कारण, है ना, एजिंग है, एक जीन है जो दिक्कत करता है, आउल हो जाते हैं बच्चे, मतलब आउल्स है उनमें होता है। तो फिर शिफ्ट वर्क में रात वाले जो होते हैं उनको दिक्कत होती है ना। जेट लैग, जो अमेरिका में जिनके रिश्तेदार तो पता है कि जाते हैं तो वहां पे उनको नींद नहीं आती, क्योंकि 10 साढ़े 10 घंटे का अंतर है। डिप्रेशन, पुअर स्लीप क्वालिटी, अल्जाइमर्स डिजीज, है ना, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सारी चीजें हैं। फिर दुविधा, कारण और निवारण। Peoples are going to sleep at 2 to 3 AM nowadays. स्विच ऑफ योर मोबाइल, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद कर दीजिए बिल्कुल। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, गेम्स, देखिए जस्टिफाइड यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग इज मैंडेटरी, बट ओवर यूज इज नॉट जस्टिफाइबल। तो ईट ड्रिंक एट 6 o'clock, है ना, ईट योर डिनर एट 6 o'clock, है ना, स्लीप 9 to 5, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे अपने आप ही।
ये बता चुकी हूँ मैं। डीप स्लीप का टाइम होता है 11 से 2, हम इस टाइम पे सोते ही नहीं, बताओ। स्नेक प्लांट जो है, मैंने देखा कि ये अभी कोविड के उसमें अपने अगर बेडरूम में हम लगाएं तो एयर प्योरीफायर के साथ साथ जो है हमारे स्लीप को भी, डीप स्लीप को प्रमोट करता है। तो अभी ये द्रव्य गुण वाले बताएंगे कि स्नेक प्लांट कहाँ है उसमें, पर मुझे ये अच्छा लगा और मैं इसको उपयोग करती हूँ। डू मेडिटेशन एंड पादाभ्यंग, शिरोभ्यंग, शिरोधारा बिफोर स्लीप, इट प्रमोट स्लीप। शिरोधारा जब इंसोमिया का कोई पेशेंट है, जैसे शाहरुख खान वगैरह, उसको कराना चाहिए तो उसको नींद आएगी। एंगेज योर सेल्फ इन ब्रिस्क वॉकिंग मॉर्निंग। सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक क्यों करना है? क्योंकि देखिए, दोष धातु मला मूलम सदा देह से तम चला। तो आप जब 5:30 बजे उठेंगे ना और मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि जो परलोक में दिख रहा है, सूरज भी दिखता है उस वक्त अरुणिमा के साथ, चंद्रमा भी दिखता है, अच्छी वायु भी चलती है। तो इसलिए वो ये टाइम जो है बहुत बेस्ट होता है। और शाम का टाइम पर ये खाली पेट ही होना चाहिए। शाम का टाइम जो होता है वो किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में आप आधे घंटे लगा सकते हैं, उससे भी आनंद की प्राप्ति होती है और बॉडी की समयता बढ़ती है। फिर उसके बाद जो है ब्रिस्क वॉकिंग को अवॉइड करना चाहिए, है ना, आफ्टर मील्स। जबकि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा लोग खाना खा के टहलने जाते हैं, है ना। सिर्फ आयुर्वेद में 100 स्टेप ही बोला गया है खाना खाने के बाद, और लेफ्ट साइड में फिर स्लीप करना है। अब हॉस्पिटलाइजेशन से होता क्या है, क्योंकि वहां पे हमारा आहार बैलेंस होता है और हमारी स्लीप बैलेंस होती है, इसलिए क्विक हीलिंग होती है। तो आहार निद्रा का जो रिजल्ट हम सिद्ध करना चाहते हैं, वो हम इतने हॉस्पिटलाइज पेशेंट में भी देखते हैं। फिर ड्यूरनल स्लीप क्या होता है कि अगर सोच रहे हो कि हम दोपहर में सो रहे हैं, शाम को सो रहे हैं, वही दीवा स्वाप है, वो नहीं है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी सुबह 5 से 8 के बीच में भी सो रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, दिवा स्वाप है। और वो 28 प्रकार की मैंने गिने हैं इसको, वो डिजीज करता है अप्रोक्सीमेटली। तो ब्रह्मचर्य शब्देन इंद्रिय संयम सौमनस्य प्रवृत्तियो ब्रह्म ज्ञान गुणा गृह्यन्ते, है ना। तो जो है ये हमारे आनंद मिल जाता है। तो हमें एक इंटरनेट पे ऐसे ही मिल गया था, कम से कम वो जो हमारा स्नातक काल में भ्रम था वो तो नहीं है, कम से कम तो कुछ तो मतलब जो है ये क्या है। The word brahmacharya actually translates as behavior which leads to brahman. Basically talking about here is behavior which leads us towards the डिवाइन एंड हाई पावर, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। रिगार्डिंग ब्रह्मचर्य एज, क्योंकि हम किसी को हेल्प करते हैं, मेट्रो में किसी ओल्ड एज को किसी को सीट देते हैं, तो उससे क्या गुड फीलिंग ऑफ गुडनेस आती है। हम दे तो देते हैं, हमें सही को कष्ट होता है, पर हमारे आनंद की वृद्धि होती है। राइट यूज ऑफ एनर्जी लीड्स अस टू कंसीडर हाउ वी एक्चुअली use and direct our energy. Brahmacharya also evokes a sense of directing our energy anyway from external desires. You know, those pleasures which seem great at the time but are ultimately fleeting, and instead towards finding peace and happiness within ourselves. If we are able to direct our energy towards something positive each day rather than directing our energy towards our often negative thoughts, we will not only be able to boost our immune system but will also actively be making the right use of our energy. देखिए इनके चेहरों की चमक, देखिए सदगुरु है ना, ईशा फाउंडेशन और ब्रह्म कुमारी, है ना। तो इनका आनंद है, जो दिन भर इतनी शुद्ध विचारों के साथ रहेंगे, तो जो है फेस पे जो है वो चमक तो आएगी, भले वो आहार और निद्रा ना भी करें, क्योंकि ये लोग योगी हो चुके हैं ना। सुशांत सिंह राजपूत जो भोगी था, 3 घंटे सोता था, है ना, पर उसको सारे दुनिया के सारे सुख चाहिए थे। पर जो अगर मोदी को कहें तो वो तो तुरीय अवस्था में भी अपनी नींद को पूरे कर लेता है, वो 4 घंटे में भी अपना पूरा कर लेता है। फिर उसके बाद जो है ब्रह्मचर्य का एक रेफरेंस मिला था मुझे कि सत्य चैतन्य प्रधान स्वयं पुरुष कैवल्यार्थम प्रवृत्तिम उपदिशन्ति, शुश्रूषा स्थान में है। ये क्या है, कैवल्यार्थ के लिए, मतलब कैवल्य प्राप्ति ही जो है हमारा मेन लक्ष्य है, और वो परलोक ऐष्णा है। हम सिर्फ धन ऐष्णा और प्राणेष्णा में लगे हुए हैं, इस तरफ हम अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं। मोक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम फिर दोबारा जन्म नहीं लेंगे। मोक्ष का मतलब ये है कि भगवान आपसे पूछेंगे कि खुद ही को पर इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे बता बंदे तेरी रजा क्या है, कि तुझे अगले दिन में कौन सा जीवन चाहिए, मनुष्य जीवन चाहिए कौन सा, मतलब आपकी ये स्थिति है। तो न ही कर्म महत् किंचित। जब ऐसे चीजों, मतलब हम कुछ भी अगर सारे ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं और अगर कोई चीज सही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा कर्मज रोग है वो, है ना। हमें देखने को भी मिलता है क्लिनिकल डेस्क पे। तो हमें अपना क्या करना है, धारणी वेगों को तो जो है वो धारण करना है। वो लोभ शोक भय क्रोध मान वेग विधारयेत निर्लज्य याति रागाणाम अभिध्याया याश्च बुद्धिमान है। तो ये जो है उसको धारण करना है। और अधारणी वेग जो 13 है, सभी जानते हैं, उनका उचित समय पर त्याग करना है।
जब हम आम की चिकित्सा करते हैं तो कोष्ठ शाखा मर्म अस्थि संधि रोग मार्गों तक आम का मल का निष्कासन जरूरी है, नहीं तो ये ब्रह्म का आनंद भी हमें नहीं मिलता है। ब्रह्मचर्य जो है आनंद, तो हम ब्राह्मणवत आचरण करना, तत्फल स्वरूप ब्रह्मांड में आनंद रूपी रमण करना, अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि जो हम करते हैं वो हमें वापस मिलता है। व्हाट वी सो वी रीप, व्हाट इट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। तो हमें स्वाभाविक वैष्णव जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ना कि बलादीक्षा पूर्वक, है ना। हमें अपना फिक्स रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। ईर्ष्या, भय, शोक, भय, क्रोध, मान द्वेष आदयश्च ये मनोविकार, तो प्रज्ञापराध जो है मेन कारण है जिसकी वजह से हम आनंद फील नहीं कर पाते, जो मतलब जानबूझ करके हम जो अपराध कर रहे हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक दोषों से 39 प्रकार के रोग होते हैं, है ना। तो इनका कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सोचना है, ट्राइस थॉट देकर के सोचना है, क्योंकि जो बाढ़ निकल गया उसको रोका नहीं जा सकता। सत्व आत्मा को बल देता है, तीन जो चीजें प्रज्ञा अपराध है वो भी आपके जो है मानसिक रोगों को बढ़ाते हैं। ब्रह्मचर्य जो सद्वृत में उपसंहार बताया गया है उसमें भी ब्रह्मचर्य फर्स्ट बताया गया है। उसके अलावा ज्ञान, दान, मैत्री, कारुण्य, हर्ष, उपेक्षा, प्रशम, अपरश्च स्यादिति, ये बताया गया है। आयुर्वेद में जैसे सद्वृत का पालन करें, आचार रसायन का पालन करें। तो ब्रह्मचर्य में हम कैसे अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो हमें सद्वृत आहार का, तो डिफिकेशन में भी आहार कैसे लेना उसका भी सद्वृत है, डिफिकेशन कैसे करना इसमें भी सद्वृत है आयुर्वेद में, बताइए। बिहेवियर टुवर्ड्स फीमेल्स कैसा होना चाहिए, ओल्ड और एल्डर पीपल्स के साथ, मतलब के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो हमारा सीनियर उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रोफेशनल कलीग्स जो है हमारे, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आपका ऑफिस वर्क प्लेस पे आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपका घर में भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बैलेंस, काय, वाक, मन एक्टिविटीज, अवॉइड तगड़ा, एक्सरसाइज करें, स्पेशली जो है मॉर्निंग वॉक 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, है ना। हेल्प नीडी पीपल इन एनी वे दे रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं कि पैसे की ही मदद हो, किसी को छोटी सी चीज की भी मदद हो सकती है, तो उतना करें, उसको आनंद मिलता है आपको। योग करना चाहिए, अपनी कोई एक हॉबीज में जरूर लगिए, है ना। जब आपका लगता है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है तो जैसे म्यूजिक है या आपको कुकिंग अच्छा लगता है, कुछ करिए। इंडोर या आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व है ना। बैलेंस दिनचर्या होनी चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रकृति होना चाहिए, रात्रिचर्या पालन होना चाहिए, ऋतु औषधि काल अकॉर्डिंग टू जो है आयुर्वेद ऋतु संधि का मतलब ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये सब नहीं भी कर पाए तो एक और भी शॉर्ट चीज है कि सीजनल शोधन कर लेना चाहिए, जिससे आम का निर्वहन होता रहे, है ना। आनंद से भी आम का निर्वहन होता है। तो अब निगमन रूपेण में कंक्लूजन पे पहुंचती हूँ कि कोविड वैक्सीनेशन जो है वो सार्वकालिक बचने का उपाय नहीं है। वायरस के स्ट्रेन तो बदलते रहेंगे, हम निर्बल हुए ना कि वायरस सबल हुआ है। तो त्रयोस्थन का पालन करते हुए हमें व्याधि क्षमता युक्त बल को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यही आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमन जो है वो प्रथम प्रयोजन नहीं है। आजकल लोग जो है वो ट्रीटमेंट चाहते नहीं चाहते हैं, वेलनेस चाहते हैं। इसीलिए जो है देखिए पवन सर ने एक ऑर्गेनाइज किया था साइंस फेस्ट वेलनेस कॉन्क्लेव, है ना। अभी आयुर्जिनोमिक्स में भी जो है वेलनेस, तो हमें आहार जो है वो 11% ही एनर्जी देता है, पर वो देहो आहार से, उसके बिना हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। निद्रा 22%, वो काम देते रहेंगे और ब्रह्मचर्य जो है वो आनंद हमको 66% ऊर्जा देता है, ठीक है। तो ये जो है इसको जो भी काम वो हमें देंगे वो अगर इन तीनों का समय पूर्वक पालन किया जाए तो कैवल्य की प्राप्ति निश्चित ही है। यह जो कि प्राणी मार्ग का एक लक्ष्य है, जो सुश्रुत में 40 स्थान में भी दिया हुआ है ना। फिर रस आदि की उत्पत्ति जो है कोष्ठ में सीधी बता भी चुकी हूँ, और लय जो है मनवास्ती संधि में होता है। तो अभी हम देखते हैं कि मॉडर्न साइंस से रिलेटेड पीएम हेगड़े सर, आरडी लेले सर ने तो आयुर्वेदिक हिस्ट्री भी लिख डाली है ना। तो वो इतना टिल्ट हो रहे हैं हमारी तरफ, और हमारा जो है हमारा खुद का अपना जो है भाषा में विश्वास नहीं है, और जो है हम अपनी खुद की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि हम चाहते क्या है ना। आयुर्वेद दुविधा की स्थिति में है, अपूर्णता की स्थिति में है, वह किसी का अनुसरण कि वह किसका अनुसरण करें। आयुर्वेद की औषध लिखना ही सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बहुत लोगों को देखते हैं कि वो आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहा है, मतलब आयुर्वेद की औषध लिखना आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं है। उसके फंडामेंटल्स को कम से कम ड्रग्स दे करके समझना और उसको रोग का शमन करना आयुर्वेद की चिकित्सा है। कोई भी देख लीजिए चिकित्सा सूत्र कितना अपलाता है,
कोई अगर स्किन डिजीज आया तो भर देगा 4-5 दवाइयां, है ना, ये आरोग्यवर्धनी वटी दे दिया, महामंजिष्ठादि को दे दिया, नीमवादी मतलब एक हर तरह की स्किन ट्रीटमेंट एक ही इलाज से हो रहा है। तो ये क्या सिद्धांत कोई चिकित्सा है? तो इन शॉर्ट, इफ these upstambhas are properly maintained, there is no possibility of generation of any physical as well as mental illness. So this is all about how Vyadhisthambha bal is dependent on Trayopstambha and improves personal effectiveness too. मतलब हमें पर्सनल इफेक्टिवनेस की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, अगर हम अच्छी निद्रा लेते हैं, अच्छा आहार लेते हैं और आनंद में रहते हैं, तो हमारे सारे दुखों का कारण सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। ये आप मान लीजिए। अगर आप दुखी होते हैं तो खुद ही अपने आप को दुखी करते हैं, कोई और आपको दुखी नहीं करता है। अगर ये जो हमारे जो दो विविध जो हमारे जो व्याधि और मानसिक वो हैं रोग हैं, उनका दैव युक्ति और पश्चय मनसो विज्ञानम ज्ञान विज्ञान धैर्य से चिकित्सा होती है, धैर्य स्मृति समाधि जो हमारे जो धारणी वेग उनको धारण करना चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, लोग धन ऐष्णा के पीछे पड़े रहते हैं, पर संपन्नता जो है संतर्पण जन्य रोगों का कारण है, ऐसा मेरा कंक्लूजन है। और ये दरिद्रता अपतर्पण जन्य रोगों का कारण है। मैं मेट्रो के नीचे से गुजरती हूँ जब भी, तो एक बेटा है, इतना मोटा हो गया, सब लोग उसको देते रहते हैं। तो मैं देखती हूँ कि उसके पास पैसा है पर वो हिल ही नहीं पा रहा है, तो मैं उसको कभी भी नहीं देती हूँ। तो ये आवश्यकता से ज्यादा संचित करने की प्रवृत्ति को छोड़े, सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी आपके साथ जाना नहीं है। बेकार का द्वेष और जो ये कंपटीशन है उसको प्लीज त्याग दें, क्योंकि वो आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। धन की तो 3 ही गति है, श्रेष्ठ गति तो दान ही है, दूसरी गति भोग है, तीसरी गति नाश है। इसके अलावा कोई गति है तो बता दीजिए। ये गीता का है, धर्मी बने, धन का पालन करें। आपकी भावना सच्ची होती है तो ईश्वर आपको निश्चित ही काल दिशा प्रदान करके लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति अति शीघ्र कराता है। मैं अपना मेरा यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पहले भी होना वाला था, उस दिन नहीं हुआ, क्योंकि ये 39 जो है लेक्चर है और आई एम प्रेजेंटली 39 ईयर्स ओल्ड। तो ये चीजें हैं। और कल ही तो क्या था, वर्ल्ड स्लीप डे था, और जो अभी आज जो है वो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है। और अगर मैं आप लोग को सुला पाई, आप लोग को खुश कर पाई, आप लोग का जीवन में कुछ मतलब स्वास्थ्य के प्रति योगदान कर पाई, तो इससे ज्यादा मैं अपने आप को मतलब जो है सौभाग्यवान समझूंगी। तो थैंक यू। क्योंकि इस कोविड का ये चल रहा है सेशन, तो मतलब पेंडेमिक 1 साल से चल रहा है, फिर से दोबारा इसकी पीक आई है, 3-4 पीक आ चुकी है ना। फिर से ऐसा लग रहा है कि जो टेम्परेचर जो है वो हो रहा है, तो फिर ये दिक्कत हो रही है। तो हमें जो है उसको ध्यान रखना है। तो अब ये पेंडेमिक में अगर लोग नहीं सुधरे, नहीं सोए, नहीं आनंद में रहे और नहीं आहार ढंग से खाया, तो क्या होगा? 2 ही लोग जिंदा बचेंगे, प्रलय आएगी। एक तो बियर गिल्स और दूसरा अश्वत्थामा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Dr. Neelam, for such a wonderful presentation and inputs which were incorporating the Ayurveda principles along with the practical approach. So before going to the chairperson for remarks, today we are blessed to have Professor Dr. Sri Krishna Khandel sir with us, who is Guru Nam Guru. So sir, we would first like to hear your blessings and words, sir. Khandel sir. Thank you, Salini. Thank you, Neelam. Yeah, this is wonderful. थैंक यू सर, आप आए। हाँ, आप सब लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। और आप जब इस तरह से कैवल्य की बात करते हैं ना, तो मुझे तो कैवल्य प्राप्ति हो जाता है क्या। थैंक यू नीलम, बहुत अच्छी तैयारी है तुम्हारी। तो मुझे खुशी होती है कि तुम लोग इतना अच्छा प्रिपेयर कर पाती हो। सर आप ही लोग का बाकी तो आशीर्वाद सब है सर। ज्ञान तो ईश्वर रूपेण मुझे टीचर्स मिले हैं सर। एक तो जो आयुर्वेदिक जो है पूरा पृष्ठभूमि और एक आयुर्वेदिक रिसर्चर, मतलब मुझे एनआईए में इससे अच्छा क्या बेस मिल सकता था सर। आयुर्वेद चिकित्सा और क्या, एक बार दोबारा बोलना सर। इतना वंडरफुल आयुर्वेद चिकित्सक और उसके सिद्धांत को पालन करने वाला और एक आयुर्वेद में रिसर्च में इतना इंटरेस्ट लेने वाला, मतलब दोनों गुण मिला है मुझे। प्रेजेंटेशन स्किल पवन सर जैसा नहीं है, पर निश्चित ही स्लाइड्स पे उनका जो है बहुत योगदान है। और जो जोश से वो बोलते हैं, उसका जोश जो आज था थोड़ा, तो सर का योगदान है। वेरी गुड, थैंक यू।
चलो बहुत बढ़िया, मिलेंगे छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। जी सर, बिल्कुल। सर हम लोग होप सब कि लोग कोरोना वेट ना कर रहे पड़े हैं। सर। सर होप कि कोरोना की कोई नॉर्म्स ना आ जाए। नहीं नहीं, अब नहीं। अब पवन जी क्या है कि इन सबको उड़ा के ले जाएंगे कहीं। वायुना यत्र नियन्ते जी सर, पवन जी तत्र पूरा गच्छन्ति हनुमान है, मेघा। गॉड एट वार है सर। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सर। अच्छा लगा। Thank you so much, sir, for blessing all of us with your presence, sir. नॉलेज से तो हम लोग हमेशा ही ब्लेस होते रहेंगे, उसके लिए तो हम आपको थैंक्स कर नहीं सकते, कोई आपको थैंक्स उसके लिए कर नहीं सकता। तो शालिनी जी। जी सर, प्रणाम सर, मैं आपको इनवाइट करने वाली थी। नहीं, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था आपसे कि आप लगे आ तो सर को बांध लो ना अभी अगले बार के लेक्चर के लिए। सर अतुल जी का ये आग्रह था कि 27 तारीख का जो लेक्चर हो वो एकदम बड़ा सा कुछ हो, तो अब खांडल सर से बड़ा क्या हो सकता है। सर हम सबका करबद्ध निवेदन है सर, आप स्वीकार करें। खांडल सर आपके सामने प्रस्ताव है। अरे 27 तारीख का आप लोग करो लेक्चर, मैं तो बड़ा सुनता बड़ा हूँ। वाला लेक्चर है। हम लोग ये चाह नहीं रहे कि ये समाप्त हो जाए, ब्रेक हो सकता है, पॉज हो सकता है, जैसे राज कपूर कहते हैं मेरा नाम जोकर में कि ये इंटरवल है, मध्यांतर हो सकता है। अतुल जी की भी इच्छा है कि हम इसको बंद ना करें, पर कुछ हमको कुछ लग रहा है कि थोड़ा एंथुजियाज्म कम हुआ है, तो ब्रेक करके महीने में एक ऐसा कुछ अभी विचार करते हैं इस पे। पर 27 तारीख का अगर खांडल सर लेक्चर देते हैं तो फिर से थोड़ी सी चेतना लौटेगी ऐसा लगता है सर। चलिए बात करूंगा मैं। पवन जी का निवेदन है, पवन जी का आदेश है, यूं समझ। आदेश नहीं सर, बहुत ही नम्र निवेदन। पवने ने यत्र नियन्ते यार। ठीक है सर, तो हम सर इसके पोस्टर तो वोस्टर बना के छाप छुप के बांट देते हैं अभी। ठीक है सर। विषय सर आप जो चाहे, फिर भी मैं कहूंगा कि सर मन और चेतस पे अगर आप बोले तो बहुत अच्छा लगेगा सर। हम भी वही मन की विभिन्न संज्ञाएं। चलो करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सो मच खांडल सर एंड पवन सर बोथ। सर पवन सर आपकी ब्लेसिंग्स के लिए भी, और फिर हम अतुल वाशनी सर को, और फिर कुछ अगर इंटरैक्ट करना चाहे हमारे पार्टिसिपेंट्स। सर आप प्लीज। नीलम जी बड़ा अच्छा बोली आज, मजा आया नीलम जी का धारा प्रवाह सुन के। थैंक यू सर। आप कह रहे थे ना मेरी आवाज नहीं पहुंचती, आप तक पहुंचा दी। पहुंची, अतुल जी तक नहीं पहुंच रही थी आपकी आवाज। नहीं सर, कुछ एंगेजमेंट्स बहुत, मतलब कुछ समय पे ऐसा कुछ हो गया था, मतलब प्रॉब्लम्स तो रहती हैं सर ना। नहीं, आज भी कुछ उनके ऑडियो में कुछ गड़बड़ थी शायद। ओके। ऐश्वर्या जी ने फिर उनको आश्वस्त किया कि आपकी आवाज पहुंच रही है। अतुल जी आपके कमेंट्स नीलम जी के वक्तव्य पे आज के। नहीं सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला। मैं सुन तो रहा था, आवाज ज्यादा क्लियर नहीं आ रही थी, तो बाद में स्पष्ट हो गया सारा, और स्लाइड्स तो अच्छी दिख ही रही थी। बहुत अच्छा, बहुत लंबे समय से इच्छा थी सब हमारे सभी श्रोताओं की नीलम मैम को सुनने के लिए, और कुछ वो निर्धारित नहीं हो पा रहा था समय। सौभाग्य से शालिनी जी कोऑर्डिनेटर रही, एक दिल्ली को आसानी से वेवलेंथ जो है वो क्लियर हो गई, दिल्ली से दिल्ली ने पकड़ लिया ना। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आज का रहा, और श्रृंखला चल रही है लगातार। कुछ सर आपके ज्ञान के लिए सर बता दूं सर, हम लोग का वाराणसी से लेकर के जयपुर से दिल्ली तक का साथ है। जी वही तो। इसी मतलब जो हमारा पर्पज, इसीलिए भी इस जो छुपी हुई लोग हैं, लोगों के जो बॉन्ड्स हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं ना, पता ही नहीं पड़ पा रहा था लोगों को। और आज कई प्रतिभाएं हमारी इस लेक्चर सीरीज के बाद सामने आई हैं, और अभी भी बहुत लोग हैं, और अच्छा आप सब लोगों का सभी का सहयोग रहा। श्रृंखला आगे भी चलेगी कुछ विराम के बाद निश्चित रूप से। मैं शालिनी जी को विशेष बधाई देना चाहूंगा कि शालिनी जी ने बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करके और अच्छा से कोऑर्डिनेट किए सारे लेक्चर्स, और वो विशेष बधाई की पात्र हैं।
विवेक जी, Thank you, sir. बिल्कुल सारे लोग, हमारी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ रही पूरे कार्यक्रम में। तो मैं इस कार्यक्रम के साथ अपनी पूरी टीम के लिए पुनः बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये बधाई सारे लोगों को, पूरी एकेडमी को जाती है। शालिनी जी, आप आज गणेश जी के अवतार में हैं। हाँ सर, वो आज वो कोविड ड्यूटी में है ना, तो उन्होंने अपना यूजर नेम पासवर्ड मुझे दिया हुआ है, तो उसी से मैं मीटिंग शुरू कर पाई। सर आपने नोटिस किया? अभी सारे अवतार सर मुझे ही लेने पड़ रहे हैं अकेले ही। तो ऐसा ये अतुल जी ने ये आप लोगों को सबको सबक सिखाने के लिए ये उपक्रम किया, ऐसा लगता है कि जो ये योजक के काम होते हैं वो कितने कठिन होते हैं। बिल्कुल सर, वो तो मैंने है। बड़ा आसान नहीं होता है, तो अतुल जी अकेले बड़े निष्ठा से काम निभा रहे थे, इसलिए उनको साधुवाद बहुत बहुत। तो आप उसकी कठिनाई आप भी समझी होंगी कि आप कितने, आप Definitely, sir. अकेले सिंसियर हो उससे काम नहीं चलता है, नहीं दूसरों को चलता भी लेना पड़ता है साथ में, सर, उसके वो लिए तो बड़े है ही। पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। अच्छा रहा, आपको आपने बहुत सिंसियरली काम किया। तो अतुल जी चाह भी ये रहे कि सब जुड़े इससे, तो अगले महीने का भी हम इसको अभी बंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पॉज लेके 27 तारीख को खंडल चर्च से मंथली बाद एक में। तो अरेंज सर, मंथली एक चलता है, अच्छा रहेगा सर। कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे लगता है कि खंडल सर से अगले सप्ताह फिर से वार्ता करते हैं, उनके लेक्चर के बाद फिर कुछ तय करते हैं। हाँ जी सर, सर के गाइडेंस से जरूर हम कुछ कर सकेंगे। डॉक्टर प्रशांत भी जुड़ गए हमारे साथ, दिख रहे हैं हमें। इससे पहले कि सर तो विवेक जी का अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ इसको समाप्त करते हैं। जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहे, पूछना चाहे? प्रणाम प्रणाम जी, नमस्ते सर नमस्ते सर, नमस्ते। अजय सर को आश्चर्य इससे पता लग रहा है कि हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। सुभाष वाघे जी मी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। तो बड़ा बड़ी हस्तियां जुड़ी आज साथ यहाँ पर। तो और बाकी लेक्चर तो एक्सीलेंट रहा ही इनका, नीलम जी का, ये तो हमें पता ही था कि बढ़िया होना है। और जैसे इन्होंने त्रियुगस्तंभ को बताया, और वैसे भी आज की जीवन शैली की डिमांड भी यही है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, और अलग अलग जिससे प्रस्तुत करा कि जो शरीर अंधी सत्वात्मक संयोगों को पीरियोडिक टेबल से कोलेट करा, निदान के भेदों को बताया कि हम आहार और विहार करके बता सकते हैं, और कई सारी जो दुविधाएं होती हैं, अमित होते हैं, जैसे उनका जो है दुविधा और निवारण दोनों चीज बताई, अलग अलग तरीके से बताई है। और किन चीजों को हम जैसे समझते थे कि ये चीज लेनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनको भी उन्होंने काफी जो है इम्प्रूव तरीके से बताया कि इन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो इस वे में करना चाहिए। तो इस सब लेक्चर से मुझे लगता है कि नीलम जी अच्छी खुद भी रही होंगी कि जो है खाना पीना अच्छा बनाती होंगी, जिससे आहार के ऊपर उनका काम है, और सहमित रूप से मुझे पता है। तो कभी दिल्ली आएंगे तो कभी उसका भी सेवन करेंगे, क्योंकि जिसने बताया उन्होंने कि जो है टमाटर के बनाना तो बड़ा कठिन है, मैडम ने टमाटर के खाने के लिए मना कर दिया। नहीं सर, इमली से काम ले सकते हैं ना, इमली नींबू बहुत अच्छा है। अब आपकी पाक विद्या परीक्षा दिल्ली आके करेंगे कभी तो। लेकिन जो है मुझे लगता है कि मतलब जो है, जो आपने बताया सिद्धांतिक रूप से उसको सिद्ध भी करा है, और अलग अलग जैसे आपका लेक्चर हो रहा था तो उसमें पवन सर की भी झलक दिखाई दे रही थी कि हमारे हॉलीवुड, बॉलीवुड और बाकी सब चीजों का जो है, तो ये भी एक अच्छा शो होता है। हम सब इन्हीं गुरु शिष्य हैं सब, तो अच्छा लगता है देखकर कि सब पूरी हमारी टीम एक अच्छा काम कर रही है, और आशा है कि ये लेक्चर सीरीज हमारी बंद ना हो और पॉज भी ना हो। तो मेरा तो एक, सभी गुरुजन सामने बैठे हैं तो निवेदन भी है कि जैसे हम इसको सर अलग अलग लेक्चर लेते हैं, तो हम अपने मादन निदान को भी लेकर शुरू कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग सीरीज ना करके इसको मादन निदान के चैप्टर वाइज लेकर हम इसको मधुकोश टीका को या इस तरह करके आगे सीरीज बना सकते हैं भविष्य में, जिससे कि हमारा प्रोसेस ये कंटिन्यू चलता भी रहे। क्योंकि ये सीरीज जो शुरू हुई है इससे इतने लोग जुड़े हैं, पहले तो हम सब ग्रुप में रहते थे लेकिन बहुत ज्यादा नोन टू नहीं थे एक दूसरे को, तो लेकिन अब स्थिति है कि सब, कोई गुजरात है, महाराष्ट्र है, कोई कहीं भी है, सब एक दूसरे को अब जानते हैं। तो ये अच्छी बात है, केवल हमें 500 लोग जुड़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबको एक दूसरे से लिंक रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज ऐसी चलती रहे, और इसी वक्त के साथ सभी का
धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से हमारे खांडेल सर, पवन सर, अतुल सर, और जिनका सहयोग हमेशा बना रहा है और आगे भी ऐसी बना रहे और हमारी सीरीज चलते रहे, ऐसी कामना के साथ अपना वक्त समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। लेक्चर की जल्दी में मैं आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाई। हमारे आज के चेयर बाकी सारे एकेडमी के लोग तो परिचित ही हैं, तो अब मैं उस अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सर अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो अब इस आज के लेक्चर को विराम दिया जाए। And on behalf of the Rog Nidan Academy, I really want to thank all the respected dignitaries and the senior faculty members and the members of Rog Nidan Academy, Dr. S.K. Khandil sir, Dr. A.C. Kar sir, Dr. Atul Vashne sir, Professor Pavan Kumar Godatwar sir, Dr. Vivek Agarwal sir, and everybody else who joined in this lecture, our colleagues, faculty members, and dear scholars, because it's your presence for the dissemination of knowledge for which this session is there. And I want to heartily congratulate the speaker of today, Vaidya Neelam Gupta ma'am, for a wonderful presentation. It was really a wonderful presentation, and we can appreciate that she is really a very good teacher also. So with these words, I would like to request for the permission of respected dignitaries to end this session with a formal vote of thanks. Thanks, Thank you so Shalini, much. for a wonderful conduct. जी सर, Thanks for conducting this wonderfully. आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, बट बॉस त्रुटियां नमस्ते। बहुत रही, अब उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। बॉस बनारसी नमस्ते। जुगलबंदी अच्छी रही। नीलम जी का लेक्चर और आपका कोऑर्डिनेशन दोनों ही बहुत एक्सीलेंट थे, बहुत बढ़िया रहा। नमस्कार बॉस। नमस्ते सर। बनर्जी आ डॉक्टर गए। विवेक जी नमस्ते बॉस। नमस्कार डॉक्टर विवेक, आपका लेक्चर भी बहुत अच्छा था, मैंने यूट्यूब पे देखा था। थैंक यू बॉस। सर को प्रणाम सर। नीलम को मैं विशेष तौर पे बधाई देना चाहूंगा। ऑल्दो ये सेशन समाप्त हो चुका है, बट आज विश्व गौरैया दिवस भी है और गौरैया की घर वापसी हो गई ऐसा लग रहा है। आप ही मेरे गुरु मित्र और पथ प्रदर्शक हो, मैं इसको ये तो हृदय से आपका स्वीकार ज्ञान, करती हूँ। नहीं ये तो आपका ज्ञान है जो दिख रहा है, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था और बहुत ही ढंग से आपने उसको रखा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अपने लाइफ में फिर से फॉलो करें, ऐसा कुछ बहुत सारे मूल मंत्र आपने दिए हैं और वो हम सभी के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और आपको अंतःकरण से धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि आपकी बात को कंठस्थ, हृदयस्थ और करस्थ कर सके। कम से कम सोने की बात को तो मान ही लेते। जी सर, जी सर, जी सर। सर आईपीएल बंद हो जाएगा सर, मूवीज भी बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। ठीक है सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।